Hi, good morning, dear students. I welcome you all to this YouTube live streaming. Let's quickly check the connectivity of the class. Just give me a moment so I can confirm if we are connected and then we can start the class. I can't see this happening. It shows the ad. Ad है तो मतलब शायद connect हो गई होगी class, right? One second. Yes, seems working. This is great. So good morning, all of you. And my name is Rachana. I welcome you all to this YouTube class. And my dear friends, as promised, we are taking up part 3 of the MTPs for June 21 CA Foundation Aspirants. I'm here to discuss part 3, which is your resume writing, your writing skills portion. Resume writing, your emails, letters, as well as the minutes of meetings and agenda, meetings portion, business meetings portion. So let's quickly start. जिन लोगों ने पहले की क्लासेस में अगर आप लोगों को लगता है कि पहले वाले पार्ट्स हमने नहीं देखे हैं, the recording would still be available to you. और मैं फटाफट चलिए पहले हम क्लासेस में इसको मैं स्क्रीन सेट कर देती हूँ. Yes. So दोस्तों, those of you who are watching me for the first time, let me quickly take a moment to introduce myself. I'm CA Rachana Khare Ma'am, and most of you know me as a coach and a mentor to CA students. I'm an active blogger on LinkedIn and have been your business correspondence and reporting educator on Unacademy for more than a year now. It's been around 14 months. It's lovely connecting with all of you over several platforms, and this is my favorite part, YouTube classes, because सबको available होती है. All of you can take the advantage, benefits, और आप इससे काफ़ी कुछ जो है अपने लिए आप benefits reap कर सकते हैं. So ये है दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर. This 29th May थिंग, 22nd तो आज है. हम लोग यहाँ पर resumes, letters ये सब डिस्कस करने वाले हैं. 29th May is the strategy to attempt BCR paper. So ये आपको जरूर देखना चाहिए. I'll be discussing with all of you how to attempt your BCR paper. सबसे lengthy paper आपका माना जाता है. You all know BCR is part B of your paper 2. Paper 2 is considered to be the lengthiest paper क्योंकि law के साथ आपका club होता है BCR, so certainly that makes the paper lengthy. तो आपको इसमें आपको time management plus there are a few things that you must keep in mind as you attempt the paper. तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29th में 11 AM YouTube पर. नेक्स्ट दोस्तों, आप आगे चलते हैं, देखते हैं आप एवेंजर्स बैच अनाउंसमेंट्स फटाफट कर दूं, फिर आपका जो है पेपर यहाँ से स्टार्ट कर दूं. एवेंजर्स बैच विच इज नाउ आई थिंक इट हैज कमेंस्ड 12th of May, और यहाँ पर आपकी BCR का जो आप पूछ रहे हैं नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा. एवेंजर्स इज अनदर बैच फॉर November 21 CA Foundation Aspirants जो अभी किसी कारणवश क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, वो दोज वर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग कि भाई अभी हमें नवंबर के लिए एग्जाम देना है, प्रिपेयर करना है, शुरुआत नहीं हो पाई, आप इसको देख सकते हैं. आप इसको आराम से आप कॉन्टेम्पलेट कीजिए. इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू टेक अप सम क्लासेस देन यू कैन कंसीडर दीज एज वेल. आपके फेवरेट एजुकेटर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं पढ़ाने के लिए. और BCR का जो बैच है दोस्तों, BCR विल कमेंस फ्रॉम 1st of July. अभी हमारा बैच चल रहा है चैंपियंस का. इसको फिनिश करके 1st of July से आपका एवेंजर्स में मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ. नेक्स्ट दोस्तों, दिस इज कॉम्बैट. हर संडे को होता है. आई थिंक दिस संडे इज इंटरमीडिएट combat, and now next again would be CA Foundation. So alternate Sundays CA Foundation students can certainly avail the platform. यहाँ पर आप पूरा यूटिलाइज कीजिए. क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है. क्वेश्चंस आप अपनी प्रिपरेशन में आप अपना इजाफा कीजिए, प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए. साथ ही साथ यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइजेस. काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप पूल है, एंड देयर आर हेवी डिस्काउंट्स दैट आर ऑफर्ड. And to toppers, I think the subscriptions are offered without any charges, so you can certainly win some great rewards as well. इसके अलावा दोस्तों, आप अगर if you're still contemplating, Unacademy में काफ़ी पिछले दिनों भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी सब्सक्रिप्शंस वगैरह लिए हैं, तो आपको ना कुछ मंथ्स का यहाँ पर एडिशनल आपको बोनस दिया जा रहा है 6 months और 12 months सब्सक्रिप्शन पर. So if you've been planning to buy, this may be the right time for all of you.
आप ये देख सकते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोड चाहिए, but you want to use a code, it asks you can use KHARE10 and you can avail these discounts. Now, the all new initiative at Unacademy is the preparation of CSCT exams, CS Executive Entrance Test. So CS aspirants जो है, CSCT aspirants, वो यहाँ पर बिल्कुल they can also avail the platform now. They can also utilize the classes. काफी जोर था कि भाई CS के लिए भी कुछ classes वगैरह होनी चाहिए. So we got this started on this 12th of May and classes are going on. Feedback and response is phenomenal. बहुत अच्छा चल रहा है and very soon इसका जो है रिपीटेशन नेक्स्ट बैचेस भी लॉन्च किए जाएंगे. फॉर नाउ द बैच इज गोइंग ऑन एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ आप इसको यू कैन जस्ट लुक फॉर विक्ट्री बैच. आप अनअकैडमी पेज पर देख सकते हैं, आप यहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं. टीचर्स आर ऑल योर favorite educators, all the faces that you know very well, and they have been associated with Unacademy for some time, and all the teachers have good experience and knowledge of their subjects. तो आप बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत होकर के अपनी प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. Now, let's begin your MTP discussion. Today I'm also going to be getting my first jab. ये कोविड का वैक्सीनेशन यहाँ पर फाइनली जो है आई कुड रजिस्टर. सो आज उसी की हड़बड़ी में आई थिंक आई कुड लॉग इन अली यू नो 2 मिनट मुझे टाइम लग गया. आपके यहाँ क्लासेस करके इस डिस्कशन के बाद मैं जाने वाली हूँ कोरोना से फाइट की अपनी तैयारी के लिए. All of you also should register and get yourselves vaccinated as quickly as is possible, and all of you stay alert and stay safe. That is the best we can do to ourselves and to help others also, right? तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों. आपका जो RTPs MTPs दोनों मैंने यहाँ पर मिला दिए हैं. लेटर टू योर मैनेजर telling him that the office equipment you have ordered will arrive a week later than planned. So this is information. ये आपको inform करना है अपने मैनेजर को कि भाई equipment जो है वो लेट आएगा. Next is letter to Mr. Shyam accepting the invitation as a guest speaker for a talk. जिन्होंने classes attend किए हैं दे नो कि हमने सारे पैटर्न्स, हमने सिमिलर लाइंस पे लेटर्स जो है प्रैक्टिस किए. बट हियर आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू अ फॉर्मेट. एक फॉर्मल लेटर्स का ना दोस्तों फॉर्मेट होता है. सिंस वी आर टॉकिंग हियर ओवर अ यूट्यूब क्लास, सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई गिव यू अ बैकग्राउंड. आपको अगर फॉर्मेट क्लियर है ना तो आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, आपको फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहा जाए, यू विल बी एबल टू राइट only if you are familiar with the format. Write a letter to Rotary Club manager for inquiring about the availability of conference hall. Similar question हमने किया था. हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक करने का क्वेश्चन किया था. अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको याद हो तो, राइट. So plus classes में certainly we practice a lot of things. For all of you who are watching this YouTube class, I got this formulator structure for you. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना ये फॉर्मुलेटर में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको जरूर नोट डाउन करनी चाहिए. दीज आर पार्ट्स ऑफ लेटर. ठीक है, दीज आर पार्ट्स ऑफ लेटर. सी मी 1 सेकेंड. मैंने यहाँ पर मार्कर में नहीं अंडरलाइन किया. जस्ट 1 सेकेंड मैं आपके लिए इसको ढूंढ लेती हूँ. एक बार PDF खत्म कर लेते हैं. गिव मी 1 मिनट. I'll be able to write here. मैं अपना इसमें अगर दे लूँ तो I think it's not working. चलिए कोई बात नहीं, इसी पे करते हैं हम लोग. थिंग इज आई वांटेड टू राइट हियर. फाइन, फेयर इनफ. सो लुक एट दिस फॉर्मुलेटर स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड राइटर्स एड्रेस और द सेंडर्स एड्रेस. दिस इज आल्सो नोन एज रिटर्न एड्रेस. ये जो यहाँ पर आप देखते हैं ना एड्रेस, ये राइट हैंड साइड आप थोड़ा सा राइट अलाइन रहता है सेंटर से. दिस इज द सेंटर. सेंटर से आपका राइट अलाइन रहता है राइटर्स एड्रेस, राइट. दिस आल्सो इज नोन एज sender's address or the return address, followed by the date, है ना, slightly right aligned रहता है. This is known as modified block format and this is the most
used format in writing formal letters. For writing formal letters आप अगर modified block use करते हैं, this is the most conventional form and most used format, right? इसके बाद दोस्तों आता है आपका recipient's name and address. इसके पहले एक और छोटी सी चीज होती है ऊपर लेफ्ट हैंड साइड जो लिखी जाती है, दैट इज द रेफरेंस नंबर. ठीक है, फॉर्मल लेटर्स में स्पेशली ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं ना, उसमें आपका रेफरेंस नंबर जरूर दिया जाता है. आप लोगों ने देखा होगा रेफरेंस नंबर इज यूजफुल फॉर सेवरल थिंग्स, फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंस टू पास्ट रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी यूज होता है, फाइल किया जाता है, टैग किया जाता है. भाई क्लाइंट्स के लिए अगर आप कुछ हमें काम करना है, उनके साथ कोरेस्पॉन्डेंस करना है, रेफरेंस नंबर दिया जाता है. रेफरेंस नंबर कैसे क्रिएट किया जाता है? सो जनरली अल्फा न्यूमेरिक होता है और ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कोड डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस के ऊपर एक रेफरेंस नंबर और लेना चाहिए. इसके बाद दोस्तों रेसिपिएंट एड्रेस होता है. क्यों होता है ये रेसिपिएंट एड्रेस? रेसिपिएंट एड्रेस पता है क्या है? इसमें जो पार्ट्स ऑफ लेटर है, ये अगर आपने देखा हो 13 पार्ट्स नॉर्मली इसमें मैं कंसीडर करती हूँ आपको बताने के लिए. यहाँ रेसिपिएंट्स नेम और एड्रेस इसलिए लिखा जाता है, जो कॉन्सियर्ज या फिर जो डिस्पैच क्लर्क होते हैं जनरली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या करस्पॉन्डेंस के लिए, जब यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है ना, दिस सेम एड्रेस इज पुट ऑन द एनवेलप आल्सो. ये सेम एड्रेस जो है रेसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, दिस इज सेम एड्रेस इज पुट ऑन द एनवेलप. तो ये इजी कर देता है, डिस्पैच जो होता है उनके लिए इजी कर देता है. एंड इन केस यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिस्पॉन्स, अगर रिप्लाई, तो उसके लिए ये यूज होता है रिटर्न एड्रेस. रिटर्न एड्रेस अगर रिटर्न करना है लेटर या कोई रिस्पॉन्स आपको आपके पास आना है, तो वो उसके लिए होता है. ये इसीलिए एड्रेस लिखा जाता है ऊपर राइटर्स एड्रेस. क्या आपको लगे कि यार ये इतना सारा एड्रेस लंबा, फिर कभी राइट में कभी लेफ्ट में, तो फॉर्मेट इसको, और ये मॉडिफाइड जो होता है ना, थोड़ा इधर राइट अलाइन किया इधर लेफ्ट, ये बैलेंस लगता है. आपके पास एक ब्लॉक फॉर्म भी होता है, अगर आप लोगों ने सुना हो ब्लॉक फॉर्म, फुल ब्लॉक फॉर्म. इसमें पूरा टेक्स्ट लेफ्ट को फ्लश्ड होता है, इसमें सारा टेक्स्ट जो है ये लेफ्ट अलाइन होता है. सो दिस लुक्स स्लाइटली अनबैलेंस्ड. ये क्यों बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड को जो है वो ज़्यादा यूज्ड माना जाता है, या क्यों ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है? बिकॉज पूरा लेफ्ट होने की वजह से फुल ब्लॉक फॉर्म जो है वो थोड़ा सा अनबैलेंस, कभी कभी इट मे लुक लाइक अ टी. लेकिन ब्लॉक फॉर्म भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है. एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल यूजिंग मॉडिफाइड ब्लॉक, यू मे यूज द ब्लॉक फॉर्म. पूरा अगर आप लेफ्ट को अलाइन करते तो भी चलेगा. और राइटर्स एड्रेस और लेटर हेड, आई थिंक यू हैव द फैमिलियरिटी विद लेटर हेड. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए जब आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी को लिखते हैं, आप अपना पर्सनल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर, है ना. और अगर लेटर हेड है, लेटर हेड है मतलब आपका जो है ऑफिस का एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस, कंपनी का एड्रेस यहाँ पर प्रिंटेड होगा लेटर हेड में, है ना. लेटर हेड में आपका एड्रेस और नेम ऑफ द कंपनी इज प्रिंटेड. यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी में, जहाँ पर आप जो है आपका डेजिग्नेशन है एंड यू आर राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, you don't need to put this writer's address separately because it is already printed on the letterhead ना. letterhead में ये printed होता है. clear हो गई ये वाली बात? so now next comes your salutation. इसको dear sir madam को कहते हैं salutation. इसके बाद में आपका आता है subject line. always subject line should be given after the salutation, जहाँ पर क्लैरिटी के साथ आप दें कि भाई क्या सब्जेक्ट, किस बारे में आपको लिखना है, क्या आपका सब्जेक्ट बनने वाला है, just below the salutation. then comes your main body, which is divided into 3 to 4 parts depending on the requirement of your letter. कि भाई सबसे पहले होता है आपका इंट्रोडक्शन, छोटा सा, जिसमें अगर आप फेमिलियर हैं तो आप फॉर्म आप रीडिंग कर सकते हैं, एंड इसके बाद जो है आप मेन पॉइंट पे आ जाते हैं. फॉर्मल लेटर्स आर नॉट अबाउट जनरल चिट चैटिंग और बीटिंग अराउंड द बुश. यू स्ट्रेट कम टू द पॉइंट, क्योंकि आपको जनरली आपने देखा होगा भाई एक साइज है ना, आपका ईमेल्स जो होते हैं वो एक स्क्रीन साइज में, और लेटर जो होते हैं मैक्सिमम एक A4 साइज में आपको खत्म करने ही चाहिए. Put it paragraph wise so all your ideas and thoughts are clear. Why you are writing the letter? Why you are writing the letter? What is your concern? है ना. उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है भाई, उसमें what is the action that you are expecting? ठीक है, what are your concerns? Then what is the action that you are expecting? Here, action paragraph. Conclusion of the letter. So compiling all the things above. In short, आपको लिखना है कि भाई what you want to happen from writing your letter. This letter, what do you expect from this letter? कुछ भी आप लिख सकते हैं. आपने कोई रिक्वेस्ट की है, आपने कोई कंप्लेन की है, this is some kind of inquiry or anything else, application or anything else. Applications और cover letters are also necessarily the formal letters. ठीक है, तो स्ट्रक्चर सबका दोस्तों सेम रहता है.
आफ्टर दिस एक्शन पैराग्राफ देन कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप सब जानते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज थैंकिंग यू, और मेल्स जैसे करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं वार्म रिगार्ड्स. यहाँ पर आप योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर राइटिंग द लेटर. ठीक है. आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कॉलेज में लेटर लिख रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए आप रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, डीन को लिख रहे हैं, आप ओबीडियंटली लिखेंगे, राइट. आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में यू आर अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर राइटिंग टू समबडी एल्स, यू मे राइट योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. ठीक है. योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये ज्यादातर यूज होते हैं. ठीक. स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई कैन सी योर मैसेजेस, सो वंडरफुल, गुड टू सी दैट यू ऑल जॉइंड इन. और ये अब आपको अगर फॉर्मेट क्लियर हो गया है, सो वी कैन टेक अप द टॉपिक्स दैट वर गिवन टू यू इन द एमटीपी. ठीक है. सो ये हो गया फ्रॉम एड्रेस. यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुल ब्लॉक फॉर्म जो है वो यूज किया गया है. फ्रॉम एड्रेस, डेट इन फुल हमने अभी अभी किया था. फ्रॉम एड्रेस, ये पूरा फुल ब्लॉक फॉर्म यूज किया. फुल ब्लॉक फॉर्म मीन्स एवरीथिंग इज लेफ्ट अलाइंड. ठीक है. सजेस्टेड फॉर्म्स आर फुल ब्लॉक, मॉडिफाइड ब्लॉक. मॉडिफाइड ब्लॉक देखने में भी काफी अच्छा लगता है, एंड दैट इज द मोस्ट कन्वेंशनल फॉर्म. आप चाहो तो आप फुल ब्लॉक फॉर्म भी यूज कर सकते हो, है ना. ये रहा आपका रिटर्न एड्रेस. डेट इन फुल, टू वाला एड्रेस रहा, रेसिपिएंट का एड्रेस. देन कम्स डियर सर के बाद आपको वैसे सैल्यूटेशन लिखना चाहिए, बट अगर आपने यहाँ पर भी लिखा है गलत नहीं है. वैसे जनरली आप अगर लेटर्स लिखेंगे फॉर्मल लेटर्स में ना, आपका सब्जेक्ट जो है सैल्यूटेशन के बाद आना चाहिए. ठीक है. ऑफिस इक्विपमेंट डिलेड, तो उसमें टॉपिक क्या था कि भाई ऑफिस का इक्विपमेंट डिले हो गया है. कैसे डिले हो गया, क्या डिले हो गया, दिस इज बीन पुट हियर. आई हैव ऑर्डर्ड some new PCs and monitors. Unfortunately, the monitors will arrive in the second week of March. I apologize for the delay caused due to the lockdown. This we all know that lockdown is causing too many delays. Lockdown is actually the cause for many things that are happening outside, and delays being one. अभी recently एक student ने message किया था कि उनकी marksheet नहीं पहुंच पाई, उन तक delay हो गई है, and now they have to send it online. जो है वो उसको attest वगैरह करा के भेजना है. तो आप सब you all are privy to this. So this is a simple line, simple two-liner. I have ordered some new PCs and monitors. As per discussion, also you can write as per discussion, or as per our last meeting, I have ordered new PCs and monitors. Unfortunately, monitors will arrive in the second week. The delay has been caused by the lockdown, and I apologize for the same. आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. I shall follow up with the vendor for an early delivery. I shall follow up with the vendor and get this delivered as early as possible. Even this is how you can write. ठीक है, simple है. ऐसा नहीं कि language आपको exact follow करनी है, but whatever you write should make sense, right? It should be on the similar lines. आप लैंग्वेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आप ये देखिए वर्डीनेस नहीं होनी चाहिए लेटर्स में ना. आप जब भी लेटर्स लिखते हैं दे शुड बी क्रिस्प, एज कंसाइज एज इज पॉसिबल. ठीक है. उसके बाद हो गई बात खत्म. थैंकिंग यू की जरूरत नहीं है यहाँ पर. रिगार्ड्स, व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज दिस मैनेजर इज इन्फॉर्मिंग द सीनियर. आपने देखा था ना, यहाँ पर आपने देखा था ये, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर बॉस, टू योर मैनेजर. ठीक है. तो इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई रिगार्ड्स श्याम परचेज ऑफिसर, नेम एंड सिग्नेचर. ये आपको लिखना चाहिए, है ना. आप अपना नाम नीचे जो, और सिग्नेचर ब्लॉक होता है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, उसके बाद आपका नाम और नीचे होता है आपका सिग्नेचर. Further you go down, there are enclosures also. ठीक है. There can be a copy distribution also. ठीक. आपको अगर ये भी क्लासेस है, मैं ये सारे ना डिटेल्स जो है स्पेशल क्लासेस में भी देती हूँ आपको. स्पेशल क्लासेस are special Unacademy classes that are open and free to all the CA Foundation Aspirants. आप उनका बिल्कुल जो है फायदा ले सकते हैं, उनका एडवांटेज ले सकते हैं. जो रेगुलर कोर्सेज, कई बार लंबे कोर्सेज हमारे जो होते हैं वो अटेंड अगर नहीं भी कर पाते, आप स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी students have utilized those classes and have been able to do very well in the exams. तो आप सब you can keep a watch, you can keep a close watch. YouTube और आपके स्पेशल क्लासेस पर अनअकैडमी पर आपको बहुत कुछ ऑफर किया जाता है. You all can certainly avail that. नेक्स्ट, अभी अगेन ये देखिए फॉर्मेट सेम रहेगा, है ना. फ्रॉम एड्रेस, डेट इन फुल, टू एड्रेस, ये सब सेम रहेगा. ठीक है ना. Now subject is what? With reference to invitation. Okay, यहाँ पर हमने देखा था जहाँ invitation accept किया गया था. ये आपको बुलाया गया है. Write a letter to Mr. Sham accepting the invitation as a guest speaker for a talk. So normally colleges में, है ना, कोई educational institutions में या कहीं और, है ना. जैसे मुझे
जनरली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बुलाया जाता है फॉर की नोट या इस तरीके से जब इन्विटेशन आता है तो इनको इन्विटेशन दिया गया, आपको इन्विटेशन दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू नीड टू राइट, यू कैन हैव एनी प्लेस, रेफरेंस ऑफ एनी प्लेस। यहाँ पर चंडीगढ़ का रेफरेंस लिया गया है, डियर मिस्टर श्याम, ठीक है, विथ रेफरेंस टू योर इन्विटेशन, सब्जेक्ट डियर मिस्टर श्याम, आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, राइट। You could have refused also. That becomes a refusal letter. That becomes a bad news letter. हम लोगों ने किया था ना, bad news letter भी काफी हमने डिस्कस किया था। तो उस केस में you have to give a reason also and counter proposal also. यहाँ पर आपने accept कर लिया, ठीक है, यहाँ पर acceptance है, यहाँ पर acceptance भी हो सकता है, non acceptance भी हो सकता है कि नहीं? Non acceptance अगर है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? You have to give a ground. Though I would have loved to accept. I'm just giving you because एग्जाम में वैसे भी आ सकता है आपको, ठीक है। So I would have loved to be with you all and accept your invitation, but unfortunately I'm caught up with something else on that particular day and I'm afraid I would not be able to visit you on time or I would not be able to be there on time. ये आप लिख सकते हो, है ना। So it is important to express your willingness, but at the same time refuse clearly. And it is very important to appreciate for the invitation being extended, but at the same time refuse clearly. Also, then you can offer a counter proposal, right? I would want this whatever seminar or conference to be great, and then for that, in case you want, I can share some of the numbers of my friends who may be available and who may be able to do the justice in similar capacity, in the same capacity. तो इस तरीके से आप काउंटर प्रपोजल भी दे सकते हो कि भाई मेरे ही जैसे मेरे स्टेचर के एक दो और लोग हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं और जो आपके काम आ सकते हैं, राइट। दिस इज अबाउट एक्सेप्टेंस, तो इसको हम देख लेते हैं। आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, फर्स्ट लाइन, ये डायरेक्टली, दिस इज अ गुड न्यूज ना, दिस इज अ डायरेक्ट लेटर कि भाई आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट, काइंडली प्रोवाइड दी डिटेल्स, कितने घंटे का है आपका सेशन वगैरह क्या है और किस बारे में टॉक होनी है, ताकि वो प्रिपेयर करे। दिस इज द मस्ट आस्क व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड, राइट। इसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो तो भाई आपको ट्रैवल जब करना है तो आपको एक दिन का एकोमोडेशन आप मांग सकते हैं, या फिर ठीक है यू कैन अरेंज फॉर अ पिकअप और अ ड्रॉप काइंड ऑफ अ थिंग। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपने लेटर को, ठीक है। थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, सिंपल क्लोजर, ओके। रिगार्ड्स राम, वार्म रिगार्ड्स राम, ठीक है। दिस इज हाउ यू क्लोज इट, दिस इज हाउ यू क्लोज द लेटर। So these are general letters. These are not applications. These are general letters. जब आप generally letter वगैरह लिखते हैं ना, application लिखते हैं, request लिखते हैं, then you write thanking you and whatever, sincerely, faithfully, whatever you want to write. Complimentary close will depend on the type of the letter. Now next one. ये भी एक है यहाँ पर, ये वाला I think this is from the RTP. एक आपका, अच्छा ये RTP से तो ये MTP से, मैंने दोनों को मिला दिया है। वो आरटीपी में जो सोल्यूशन दिए हुए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर में, एंड वन इज योर मॉक टेस्ट पेपर, राइट। आई थिंक दिस इज फ्रॉम एमटीपी। you are ABC senior manager administration of B&M Solutions Private Limited. So this becomes much easy. जब आपको ऐसे नाम दिया रहता है ना, B&M Solutions Private Limited and you are ABC, it becomes much easier for you. दोस्तों कहीं पर भी नाम और ये सिंबल्स वगैरह मत दीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि अभी कितनी दिक्कत हुई है कुछ स्टूडेंट्स को, स्पेशली एडमिट कार्ड में आपके इंस्ट्रक्शन से यू विल नॉट पुट एनी काइंड ऑफ एडिशनल नेम्स एंड सिंबल्स। वो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, ये सब नहीं लिख के आना है एग्जाम में, है ना। देयर वर सो मेनी आंसर शीट्स दिस टाइम दैट वर विथहेल्ड और काफ़ी दिक्कत हुई स्टूडेंट्स को, है ना। क्लियर नहीं क्लियर वो तो अलग बात हो गई। ये दिस फेज इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑलरेडी एंग्जाइटी इतनी हाई होती है और उस पर अगर पेपर विथहेल्ड हो जाए तो वो आप और कंफ्यूजन में इंसान मचा रहता है कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। So always abide by the instructions, always read the instructions carefully and utilize the question fully, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्या करना है, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। नाम ऐसे आए बाय नाम जो है वो अवॉइड कीजिएगा देना आप लोग, ठीक है। ड्राफ्ट अ कंप्लेंट लेटर। नाउ कंप्लेंट लेटर नीड नॉट बी एक्सप्रेसिंग एंगर, ठीक है। कंप्लेंट लेटर मस्ट ऑलवेज एक्सप्रेस अ कंसर्न इन द मोस्ट पोलाइट मैनर। अ कंप्लेंट लेटर need not be a letter filled with anger or maybe the anguish. ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा ना लगे आपका लेटर देख करके कि ये डांट रहे हैं चिल्ला रहे हैं। लेटर should be expressing the concerns politely, ठीक है।
रिगार्डिंग द डिले एंड डिलीवरी, तो विजिटिंग कार्ड्स का डिले हो चुका है डिलीवरी का। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका एक बार एग्जाम में काफी पहले आ चुका है। तो मैंने जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को कराए थे ना अपने रिविजन क्लासेस में, तो हमने एग्जैक्टली यही लेटर जो है किया था। बट आई शो यू नाउ व्हाटएवर इज बीन ऑफर्ड टू यू, यहाँ पर जो दिया गया है। और इसके बाद ये ईमेल्स कराए गए, तो ये ईमेल का भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। आप यूर सीनियर मैनेजर एचआर, एम्प्लॉइज को आपको ईमेल करना है इनवाइटिंग देम टू अ मीटिंग। ईमेल और लेटर में बॉडी जनरली सेम सेम होती है, ठीक है, बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर ईमेल इज गॉट अ डिफरेंट फॉर्मेट, लेटर इज गॉट अ डिफरेंट फॉर्मेट। भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप लिखते हो, सब कुछ आपके पास स्क्रीन आ जाती है, आप फिल करते हो और बॉडी लिख देते हो। लेटर में आपको जो है फॉर्मेट भी आपको खुद ही जो है ड्राफ्ट करना होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, आपको सुन के अच्छा लगा, ओके ओके। So I think this is Jahid. Jahid, good to see you. And I'm also happy that you're watching me online. You're watching me live on YouTube. I'm happy to connect with you here. Okay, guys, CA Foundation guys, ये देखो यहाँ ध्यान से, सेल्स मैनेजर ये हो गया आपका डेट। ओके, सेल्स मैनेजर, तो यहाँ आपको बेसिकली आप लेटर हेड पर लिखोगे, कंप्लेंट लेटर है, और परहैप्स आप यहाँ पर जो है ये BNM सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर आप एक लेटर हेड बना सकते हैं, ठीक है। Since you are writing in the capacity of the senior manager BNM solutions, just make यहाँ पर at the center date के just बगल में यहाँ पर center में ना you can create a letterhead kind of a thing। letterhead कैसे create करोगे, कंपनी का नाम एड्रेस सेंटर पे आप यहाँ पर डाल दोगे ना, हो जाएगा, ठीक है। नीचे राइट साइड में लिखिए आप ये डेट, देखिए यहाँ पर मॉडिफाइड फॉर्म यूज किया हुआ है, और उसके बाद आता है द सेल्स मैनेजर जिनको आप लिख रहे हैं, the address and person and the address to who you are writing the letter। GHJ Printers 812 Netaji Nagar, New Delhi, पूरा full address। Dear sir, and look at the subject, look at the subject, ठीक है। Complaint for the delay in delivery of order number this, okay, with reference to the subject, subject line में mention कर दिया, order number जरूर mention करना, it is already given। order number नहीं दिया है तो XXYYZZ कर दीजिए, ठीक है। Since it is about the order, it is important that you as commerce student must know कि भाई order number डालना होता है इसमें, okay। So I would like to bring to your notice, order was placed on this date at the behest of Director HR. It was committed that the delivery of the visiting cards will be made in a week's time. In a week's time, or you can write will be made, latest by this date. ऐसे आप लिख सकते हो। As on date, it has already been more than 2 weeks. Right, so we have already waited for a week more than the expected date, and the order has not been delivered yet. We have not yet received the order. This also you can write. Okay? The senior management is facing a lot of inconvenience. This is important. When you express the concern, you may add a line or two saying what is your real concern, what is happening with you, because they have not adhered to the timelines, etc. What is the real problem that you are facing? Senior management is facing a lot of inconvenience during meetings with clients. You are hereby directed to deliver, or you are requested. I urge you to deliver. Also, you can write, right? I urge you to deliver the order in next 2 days positively, else we will be forced to cancel the order, right? Or else the order will be summarily cancelled. ठीक है, देख लिया। अगर आपको summarily नहीं अच्छा लग रहा है, so else we will be forced to cancel the order। Looking forward to immediate action on the matter। In the matter नहीं, on the matter होना चाहिए। Look forward to your immediate attention on the matter and apprise me at the earliest। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। More can be discussed over a phone call। ABC Senior Manager BNM Solutions। This is like a straightforward letter। Language में कहाँ modulate कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया already, ठीक है। समझ में आएगी वाली चीज। नेक्स्ट, फ्रेश रिक्रूटमेंट्स की जहां बात हुई थी, अगला वाला जो ये आपका लेटर है ना, योर सीनियर मैनेजर, मेल आपको भेजना है। अब मेल के लिए पहले एक काम करते हैं, डियर कलीग्स हो गया, तो पहले देखते हैं मेल का फॉर्मेट। दिस इज द ईमेल फॉर्मेट। फैमिलियरिटी लग रही है इसके साथ में, इस विंडो के साथ में, स्क्रीन के साथ में फैमिलियरिटी लग रही है, लग रहा है कुछ देखा ऑल ऑफ यू कैन feel familiar to this format? So look at this.
टू सीसी बीसीसी, ये आपका रहता है जनरली ऐसा, आपको मेल में आपका जो ईमेल करने के लिए आप जब अपना ओपन करते हैं विंडो, तो दिस इज व्हाट यू कैन सी। ठीक है, मेल लिखते समय दोस्तों अगर आपको दिया है ये ठीक है, अदरवाइज जस्ट क्रिएट दिस। ठीक है, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट आपको जरूर क्रिएट कर देना चाहिए, है ना, बिकॉज दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट। डोंट स्टार्ट मेकिंग दीज बॉक्सेस एंड ऑल, जस्ट पुट टू सीसी बीसीसी एंड सब्जेक्ट इन अ सीरीज। ठीक है, because this is how you get the window when you write the emails. Then आपका जो रहता है ना मेल, that is the body of the email, where you start with salutation in green, ये दिख रहा है आपको salutation, then comes the body of the email which comprises of the introduction, why you are writing the email, same as letter, matter and detail, anything to be discussed, है ना, अगर कोई order number वगैरह है, कुछ concerns है, आपको कुछ inquiry चाहिए, कुछ numbers facts जो भी है वो यहाँ पर। Then comes the conclusion, your action, what do you expect from this email, why are you writing this email, what do you expect, ठीक। Then comes your courteous leave taking and closing, same like complimentary close। नीचे आपका एक सिग्नेचर ब्लॉक होता है, जब भी हम emails क्रिएट करते हैं ना, you have an option to create the signature block, so name, designation and contact details of the sender, आपका ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर वगैरह, आपके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपका डेजिग्नेशन, that is created as a signature block. So you just need to put your name and signature block would automatically be added. That becomes an auto setting, that happens as a auto setting। ठीक है, आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर सेटिंग तो नहीं हो सकती भाई, जब एग्जाम में आपको बोला गया तो आप लिख देंगे। Now look at this, dear colleagues, सब्जेक्ट आप ऊपर ही लिख देंगे लाइन में, है ना, मीटिंग ऑन फ्रेश रिक्रूटमेंट्स। सब्जेक्ट लाइन हमेशा ध्यान रखना, इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, इट शुड नॉट बी अ सेंटेंस, पूरी फुल सेंटेंस नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, 6 to 7 वर्ड्स इज मोर देन गुड, है ना। इट शुड बी able to capture what is written in the body of the email, it should be able to capture what exactly is the body of your email। ठीक, greetings, so since this is an internal email, greetings, as you know that we need to hire fresh recruits in various departments as notified by the respective head of departments, as desired by the management, we need to start the process in a month's time to discuss the modalities as well as macro and micro level details। आप macro and micro छोड़ करके और भी details ही लिख सकते हो, to discuss the modalities as well as other details, we shall meet in a meeting room। Okay, we shall meet in the meeting room, we shall all catch up over a meeting at meeting room number 3 on the first floor at 2 p.m. today, kindly make it convenient to attend, fair, right, best regards SPJ senior manager HR। so simple, क्या है मुद्दा भाई, क्यों आप सबको पता है ऐसा करना है, रिक्रूट्स हायर करने हैं, as desired we need to start the process in a month, so we need to discuss the modalities as well as we need to discuss the other details। for that let's meet at meeting room number 3 on the first floor at 2 p.m. today। मीटिंग वगैरह अगर है आपको करनी है, मेक श्योर दैट यू राइट द टाइम एंड द वेन्यू, टाइम वेन्यू एंड डेट वेरी क्लियरली। टाइम वेन्यू और डेट के बिना जो है मीटिंग वाली चीज खराब हो जाती है, ठीक है, लेटर बिकम्स योर वॉट एवर बॉडी ऑफ द ईमेल बिकम्स इनकम्प्लीट, तो वो जरूर देना है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अप अदर मेल्स हियर। बाकी अदर प्रॉब्लम्स क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, और क्या है यहाँ पर, write an email to your colleague from IT department inviting them for meeting regarding the discussion of current problems with the computer systems। ठीक है, आप IT डिपार्टमेंट से कलीग को लिख रहे हैं कंप्यूटर प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करने के लिए और उनके साथ डिस्कस करके रिजॉल्व के लिए। यू आर ABC फ्रॉम द लीगल टीम, ठीक है। ईमेल आपको ड्राफ्ट करना है इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। सो डिटेल्स ऑफ द मीटिंग क्लियरली वुड मीन डेट, टाइम, वेन्यू एटसेट्रा along with some details that you want to discuss। क्या प्रॉब्लम आ रही है, 2-3 सोच लेना है, ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कस करना है, 2-3 प्रॉब्लम्स क्विकली यू शुड बी एबल टू थिंक। हियर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया ये, नेक्स्ट एक और होना चाहिए था, 1 सेकंड। ओके, अच्छा ये वाला है, यहाँ पर ये वाला यूज किया गया है, इनवाइटिंग देम विद रिगार्ड टू द डिस्कशन करंट प्रॉब्लम्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, फेयर, सो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पर आप इसको भी सेम तरीके से ही लिख सकते हैं, डियर कलीग्स के बाद आप सेम तरीके से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर ABC सीनियर मैनेजर, ये वाला हमने कर लिया है।
Inviting them for a meeting to discuss about new recruitments, ये भी हम लोगों ने कर लिया है. Now this is inviting them for a meeting regarding discussion faced with the current problems. तो आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही आप मिल सकते हैं, है ना, ऐसे ही लिख सकते हैं आप. You are ABC, so you are writing to your colleague from, so you are writing to some manager, IT department, right? This is an internal email, so वहाँ पर आप लिख सकते हैं Dear XYZ, Dear XYZ, you are ABC, so I'm preferring it to write to XYZ. So Dear XYZ, and we are experiencing consistent trouble, right, related to our systems or related to softwares or hardwares, whatever you may deem fit, you can write. Okay, so we would like to discuss and get a resolve at the earliest. Okay, so let's meet at meeting room number 2 at 3 p.m. today, or 3 p.m. date this, to discuss, and I would request you to get your other team members along who can contribute to this discussion effectively. ठीक, so below are the problems that we have been facing. तो भाई सिस्टम में कुछ ऑटो शटडाउन हो जाता है, some viruses etc, right, some software program not functioning properly, all these things can be listed there, so the team comes prepared. आप जब किसी को ईमेल भेजते हैं ना, और आप स्पेशली मीटिंग वगैरह के लिए इनवाइट कर रहे हैं, so बेसिक ट्रबल शूटिंग ट्रेनिंग, इस तरीके की चीजें अगर आप रिक्वेस्ट करें तो एक लिस्ट आपको देनी चाहिए. ठीक है, सेम तरीके से. देन courteous leave taking and closing. So look forward, the catch up soon, and your name and designation. ठीक? Here. This is corporate training वाला. तो corporate training के लिए यहाँ पर बताया जा रहा था, आपको introduction अपना दे रहे थे. To introduce ourselves, XXX Solutions is a corporate training organization which offers. So who are you? This you need to write small description, एक अपना छोटा सा introduction. IT and non-IT domain trainings and support customers around the world in IT training from low-end to high-end trainings. Comprising क्या? This is the list that they offer, that the training organization offers. तो ये आप अपने हिसाब से create कर लो. Not necessarily any names that you know. You may just put it here. ठीक है, आपको simple names आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना. Microsoft Technologies, MS Tools का यूज आप लिख सकते हैं. दूसरी चीजें एडवांस एक्सेल, एमएस ऑफिस सूट हो गया, यहाँ पर शेयर पॉइंट, एक्सचेंज सर्वर, बिजटॉक, आपको जो याद है, छोटा मोटा भी याद है, वो आप लिख सकते हैं. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल, अगर ये नहीं याद है तो मत लिखो, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लिख दो खाली. ठीक है, बीआई टूल्स आप लिख सकते हैं. दिस इज फेयर, राइट. अगर एक दो कुछ सिंपल और दूसरी लैंग्वेजेस भी याद है वो भी लिख सकते हो. क्लाउड कंप्यूटिंग जनरली एक बड़ा नाम है, ठीक है. बिग डेटा, Hadoop, DevOps, ये सब आप लिख सकते हो. ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, RPIoT, सारे. सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट लिख दो, ठीक है. कम्युनिकेशन कोचिंग प्रोग्राम्स लिख सकते हो आप. which including 41 various, which includes होना चाहिए, including नहीं होना चाहिए यहाँ पर. I think वहाँ से आया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई. सॉफ्ट स्किल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स which include 41 various sub programs. We are very keen, so we are keen. It's never very keen. We are keen to be associated with you as a trusted vendor and provide quality services to your employees, or will be happy to associate with you. You can also write this way, right? We are happy to associate with you. We will be happy to associate with you as a trusted vendor, providing quality services to your employees. For discussion meeting, please contact the undersigned. This person can be contacted. ठीक है, क्लियर है. सो ये सिंपल है कि लिस्टिंग के लिए परेशान नहीं होना है. आपने आईटी नॉन आईटी बोला, नॉन आईटी में आप एक दो चीजें दे दीजिए, आईटी में आप एक दो चीजें दे दीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज राइट many more programs that can be discussed in details during our meeting, ठीक है, और during a call, discussion, meeting, ठीक है ना. ये ऐसे लिख सकते हो. 3-4 लिख देना है तो भी काफी है. इसके लिए घबराना नहीं कि मेरे को नहीं याद है, लिस्ट नहीं है तो मैं क्या करूँ. Anything that you think you can remember, write 2-3 names, एक दो IT नॉन IT है भाई, दोनों के दो 3 नाम, and just add, right. We have many more programs which can be discussed and which I can offer you, or maybe which is attached here with the list of the programs is attached here with, ठीक है, as an Excel sheet, and you may refer for details, right. More can be discussed during a meeting. ये भी आप लिख सकते हो कि लिस्ट आपने कुछ यहाँ दे दी and a detailed list is attached here with, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है. This is only a glimpse. Now comes your meetings part, meeting वाला part. So your company meetings के लिए पहले आपको दिखा देती हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं, है ना. Minutes of meeting का फॉर्मेट है. इसके लिए कभी भी परेशान नहीं होना है. मैंने देखा स्टूडेंट्स को
वो जो प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली जो क्लासेस करते हैं उनको तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, अदरवाइज स्टूडेंट्स का ना इसमें स्ट्रगल रहता है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। देखिए आपको पूरी डिटेल्स ना क्वेश्चंस में दिए रहते हैं, क्वेश्चंस आपको पूरे दिए रहते हैं क्वेश्चन में। सी लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज हाउ नॉर्मली द क्वेश्चंस ऑफ फ्रेम, योर कंपनी primarily into FMCG has witnessed a steep rise, एकदम sharp, in a consumer product over the last 6 months. You can mention the product as soaps, detergents, sanitizers, etc. तो FMCG में क्या बेचते हैं आपने देख लिया है ना, सोप, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर्स, वैरायटी हो सकती है इसमें। Prepare the minutes of meeting for the same members of the meeting. Members meeting के कौन है वो दिया हुआ है, head of the sales and marketing, product head, product lead and a few team members. अक्सर इसी तरीके से आपको दिया रहता है, 3-4 लोग और कुछ टीम मेंबर्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, नीचे क्या करना है, एक एजेंडा टाइप करना है आपको। यही दो जनरली क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के आते हैं, एमओएम और एजेंडा। आई हैव गॉट द फॉर्मेट्स फॉर यू। ठीक, एमओएम का फॉर्मेट है दोस्तों, डेट डालोगे, वेन्यू डालोगे, टाइम डालोगे। ठीक, इन अटेंडेंस कौन कौन है आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इन अटेंडेंस कौन कौन लोग हैं आपको दिए हुए हैं ना, वो यहाँ पर हेड ऑफ द मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट लीड, टीम मेंबर सब दिए हुए, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नाउ नाम, फर्स्ट नाम के साथ में जनरली आपको जो भी आप चाहो, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4 ऐसे करके, सबसे पहले किसी भी मीटिंग के लिए जो सिंपल प्लान है ना, दैट इज वेलकम एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द एजेंडा, क्या क्या डिस्कस होना है। ठीक है, इसको चाहो तो एक आध लाइन बढ़ा दो, ये मेन थीम रहती है फर्स्ट वाले की, फर्स्ट नाम आप जिसका भी बोलो, है ना, प्रोडक्ट लीड हो सकता है, कोई भी जूनियर लेवल मैनेजर कैन वेलकम एंड इंट्रोड्यूस द एजेंडा। सेकेंड वन कैन बी द हेड, जो भी हेड है जनरली दे वुड बी एक्सप्रेसिंग द कंसर्न्स, जो भी कंसर्न्स अगर है तो, या हैप्पीनेस अगर है तो, डिस्क्लोजर वाली बात है। ठीक है, स्टीप राइज इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइमरीली इनटू एफएमसीजी हैज विटनेस्ड स्टीप राइज है, तो आपका जो है ये सब चीजें हैं। और प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा राइज हुआ है सो सर्टेनली मोर प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, ये अपना जॉय एक्सप्रेस करेंगे। कंसर्न होता अगर फॉल होता, ठीक है, सो कंसर्न और हैप्पीनेस, यहाँ पर कंसर्न की जगह आप कर दोगे भाई एक्सप्रेसेस हिज एंथुसियाज्म एंड जॉय ओवर द स्टीप राइज इन द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद में आप क्या लिख सकते हैं और कि भाई मोर प्रिपेयर्डनेस विल बी रिक्वायर्ड, भाई दे वुड नीड मोर स्टॉक, दे वुड नीड मोर सप्लाई, मोर डिमांड। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या है, एनालिसिस, तो ये आपको कैसे पता चला कि स्टीप राइज हुआ है, मार्केटिंग नंबर्स, द एनालिसिस, द कंपैरिजन विद द कॉम्पिटिटर्स, ये आप लिख सकते हो तीसरे नाम के साथ। हर एक नाम है ना आपके पास, 4-5 नाम है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ आपको लिखना है यहाँ पे, कुछ ना कुछ हर एक ने बोला तभी तो मीटिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ना। ठीक है, एनालिसिस, उसके बाद अपकमिंग स्ट्रेटेजी एंड प्लान। ठीक है, नेक्स्ट प्लान क्या होगा फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्या प्लान होगा। ठीक, दिस इज हाउ यू विल क्लोज। 4-5 जब आपने लिख दिए, all participants consented to submitted their reports on this topic and then agreed to submit their reports by this date, on के बजाय आप by this date भी लिख सकते हैं, to the head। ठीक है, now vote of thanks by this person and ATR action taken report जो है वो सबमिट की जाती है हमेशा, है ना, followed by a meeting or something, तो ये action taken report to be submitted by XYZ date। ठीक है, some date you have to put here। ठीक, so this is the format that you have to follow। बहुत ही सिंपल है ये, कभी भी अगर MOM आता है ना, जस्ट नाम का नोट ले लो, यहाँ तक डेट, टाइम, वेन्यू, अटेंडेंस तक लिया, उसके बाद ये वाली चीज फॉलो कर लो, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन हो गया, कंसर्न्स, ये 2-3 चीज तो कॉमन ही हो गई, खाली आपको हर एक बॉडी में से कि कंसर्न्स या आपकी हैप्पीनेस, एक्सप्रेशन, जॉय, ये आपको निकालना है, एनालिसिस, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये आपको निकालनी, बाकी सब सेम रहेगा, है ना। All participants consented to submitted their reports by this date, vote of thanks by this person, ATR to be submitted by this date। ठीक है, ये क्लियर है। बाकी जो अभी आप आगे फॉलो करेंगे स्पेशल क्लासेस वगैरह, उस पर हम लोग अपने क्वेश्चंस और बना करके भी डिस्कस करते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मेट। ओके, नाउ दिस इज योर एजेंडा फॉर्मेट। अगर एजेंडा आता है ना दोस्तों लिखने के लिए, तो कई जगह जैसे यहाँ पर भी आपके सजेस्टेड आंसर्स वगैरह में भी ना 4-5 कॉलम भी दिए रहते हैं। कई बार हो सकता है आपके जब आप लिखें, जब आप आंसर शीट में लिखें, आप इतने सारे कॉलम्स अगर नहीं मैनेज कर पाते ना, दिस इज हाउ यू कैन
प्रिपेयर द एजेंडा, दिस इज हाउ यू कैन प्रपोज द एजेंडा। टाइम, साथ में ड्यूरेशन लिख देते हैं, ठीक है। टॉपिक लिखते हैं एंड स्पीकर लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं स्पीकर लिखते हैं। इसमें ना अटेंडीज आपको ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना। एजेंडा का फॉर्मेट है ना, ये टेबल बनाया तो अटेंडीज ऊपर लिखना, ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अटेंडीज आपको ऊपर लिखना चाहिए, डेट वेन्यू एंड अटेंडीज, डेट वेन्यू एंड अटेंडीज। कई जगह एजेंडा में हर एक टॉपिक के साथ अटेंडीज लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना कि किसी भी मीटिंग के अंदर जो है वो बट जाएंगे अटेंडीज, बार बार हर एक टॉपिक के लिए अलग अटेंडीज होंगे, ऐसा नहीं होता है। सो यू शुड राइट अटेंडीज एट वंस, एक जगह आपको अटेंडीज लिखने चाहिए। कौन कौन अटेंड किया, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस, मेंबर्स प्रेजेंट। तो ऊपर ना एजेंडा के साथ भी जरूर आपको ये लिखना चाहिए, डेट टाइम वेन्यू अटेंडेंस, ये लिखना चाहिए, ठीक है। एमओएम हो चाहे आपका एजेंडा हो, डेट टाइम वेन्यू और अटेंडेंस आपको लिख देना चाहिए, ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। उसके बाद बना लो टेबल, ज्यादा कुछ टाइम लगना नहीं है, डेट टाइम वेन्यू अटेंडेंस, इन अटेंडेंस। तो इससे पता चल जाता है कि आपको मालूम है एजेंडा कैसे बनाते हैं। किसी भी मीटिंग में अटेंडेंस तो होगी, तब तो मीटिंग होगी ना। फिर टाइम हो गया, ड्यूरेशन देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पर बना दिया एक आपका, जस्ट फॉर एग्जांपल 9 to 9:15, 15 मिनट का इंट्रोडक्शन एंड वेलकम। हु डज दिस, कंपनी सेक्रेटरी डज दिस, ठीक है। 9:15, 9:45, 30 मिनट्स स्टाफ अनाउंसमेंट्स, कौन, हु डज दिस, डायरेक्टर एचआर डज दिस, ठीक। सो इसी तरीके से आगे प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बाय मार्केटिंग डायरेक्टर, समथिंग एल्स बाय समवन एल्स, ठीक है। इसके बीच में लंच ब्रेक हो सकता है, लंच ब्रेक अनाउंसमेंट, उसके बाद फिर कुछ और ऐसा हो सकता है, टी ब्रेक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर एजेंडा, व्हाट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। ये as an employee of a medical firm, prepare the agenda of a meeting discussing the pros and cons of the new vaccine for COVID-19. ठीक, and discuss how it is going to affect your company sales. Use the tabular format. आपको generally और include senior executives. तो अब जब आप medical firm के employee हैं, it may have some senior managers, some senior doctors as well. ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला है आपका, सबसे पहले हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट लीड, 3 मेंबर्स। देखो सेम डेट, मीटिंग स्टार्टेड व्हेन, उसके बाद क्या क्या हुआ, सेम चीज यहाँ पर जो है। मेंबर्स वो नहीं लिखा, इन अटेंडेंस नहीं लिखा, वेन्यू नहीं लिखा, आप ऐड कर देना, ओके। मिसेस रामा देसाई, तो उसमें नाम लिख दिया है ना। आप अपने नाम भी दे सकते हैं भाई, हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, सो मिस्टर ABC, मिस्टर DEF, ऐसे भी आप लिख सकते हो, नॉट नेसेसरीली यू नीड टू राइट द नेम्स, आप मिस्टर AB, मिस्टर CD ऐसे लिख सकते हो, ये ऐड करना होगा। लेकिन हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन्फॉर्म द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ठीक है। स्टीप प्राइस इन द सेल्स ऑफ हैंड वॉश लिक्विड फॉर्म। राहुल शर्मा, प्रोडक्ट हेड, डिस्कस द मैटर अप्रिशिएटिंग द सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, ठीक है। Appreciation, since they were very happy, joyful, overjoyed with the rise in sales, the team was appreciated, ठीक है। Suggested to come up with a new variant of the product, yes, ठीक है। क्या अब आगे और क्या कर सकते हैं, the new plan, the next strategy, ठीक। Miss Garima Thakur, costing head, gave a detailed analysis. Look at this, मैंने कहा था ना, analysis कर दो, ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स एग्जामिन कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो, खत्म। ऑल द पार्टिसिपेंट्स अग्रीड टू द डिसीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वेरिएंट। सो सबने अपना कंसेंट दे दिया। कंक्लूजन स्टेटेड ATR टू बी सबमिटेड, ठीक है, एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड। गॉट दिस? सेम रहेगा दोस्तों, सेम, चाहे कोई भी MOM बनाना हो, फॉर्मेट सेम रहेगा हमेशा, और इसको पॉइंट फॉर्म में ही बनाना। MOM को पॉइंट फॉर्म में ही बनाना, 1 by 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 करके ही बनाना, ठीक है। क्लियर है, आपको क्लैरिटी रहती है। और एजेंडा हमेशा टैबुलर बनाना, ये भी। लुक एट दिस एजेंडा। अब ये मैं आपसे कह रही थी, हो सकता है आपको इतने सारे कॉलम्स बनाने में अगर दिक्कत हो तो ना आप टाइम और ड्यूरेशन को मिक्स कर दीजिए। नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हर एक में नहीं होता है, आपको ऊपर ही लिख देना चाहिए नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पूरे आप ऊपर ही अटेंडीज डाल दीजिए। हर बात के लिए अलग अलग तो पार्टिसिपेंट्स नहीं होता ना, एवरीबडी इज sitting in the same meeting. So always start with date, time, venue and attendees here also in the agenda. आप फिर यहाँ पर देखो introduction and welcome note, ये कॉमन रहेगा आपका एजेंडा में। डायरेक्टर प्रोडक्ट डिवीजन, फार्मेसी के डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर फार्मेसी लिख सकते हो आप। स्पीच, नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट है, फार्मेसी हेड लिख दो आप, ठीक है। आप यहाँ पर फार्मेसी हेड डॉक्टर XYZ। डिस्कशन ऑन इफेक्ट ऑन सेल्स फिगर्स, ठीक है, सेल्स फिगर ऑफ COVID-19 वैक्सीन, सीनियर मैनेजर सेल्स ये दे देंगे। तो आपको यहाँ पर ना कोई टेक्निकल चीजों में जाने की जरूरत नहीं है कि मैम हमको तो नहीं पता COVID-19 वैक्सीन के बारे में, यू डोंट नीड टू गो इनटू टेक्निकलिटीज। सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से
ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग कॉमर्स वाले हैं ना, तो भाई ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू टॉक अबाउट फार्मेसी और सेल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ये डिस्कशन ऑन avoiding discussion on adopting and improvising new patents, ठीक है, some new technology has come so you can adopt new and improvised technology जो भी इसमें अभी लेटेस्ट आया है वैक्सीन्स में, ठीक, senior manager pharmacy, so basically they have 3-4 names and just put it. ओपन हाउस देना चाहिए, ठीक है, जब भी कोई बड़ी मीटिंग हो, बड़े मुद्दे पे मीटिंग हो, यू शुड हैव वन ओपन हाउस. सो इंट्रोडक्शन बिकम्स कॉमन, ओपन हाउस बिकम्स कॉमन, वोट ऑफ थैंक्स बिकम्स कॉमन. कुछ और 3-4 चीजें बीच में आपको लानी है, दैट्स इट. ठीक, लुक एट दिस, है ना, 4-5 भी अगर आपने बना लिया, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स हो गया. 1.5 घंटे से लंबी मीटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. एनी मीटिंग in the corporates for more than for your 90 minutes वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी नहीं जाती. आप उसको 90 मिनट्स तक आप उसको खत्म कर दीजिए, 1.5 घंटे की 1 घंटे की मीटिंग बना दीजिए, 4-5 आइटम लिख दीजिए, खत्म हो गई बात, ठीक है. अटेंडीज ऊपर लिखते हैं. क्लियर है ये वाली चीज क्लियर है पूरी, ठीक है. दिस इज हाउ यू शुड यूज द फॉर्मेट. ऊपर डेट, टाइम, वेन्यू और अटेंडीज लिख दीजिए. इसके बाद प्रॉब्लम आएगी नहीं. ये है आपका आरटीपी के भी क्वेश्चंस होता है. यू आर सीनियर मैनेजर इन अ कंपनी ड्यू टू पैंडेमिक, द कंपनी हैड टू अलाउ वर्क फ्रॉम होम. तो इस तरीके के देखो जो क्वेश्चंस है ना आ सकते हैं रिलेटेड टू द करंट सिनेरियोज, ठीक. इसके बाद आपका आ जाता है कवर लेटर वाला पार्ट, रिज्यूमे वाला पार्ट. सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक. इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मेट जैसा तैयार कर दिया, उसको यूज करो और बनाओ रिज्यूमे कवर लेटर, ठीक है. कवर लेटर तो आप देख ही चुके हो. कवर लेटर में सिंपल एप्लीकेशन है ना, सो अभी फॉर्मल लेटर्स में फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा भाई, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, dated this and this on XYZ न्यूज़पेपर, ठीक है, with reference to your advertisement in Economic Times Classifieds or TOI Classifieds dated, say today's date 22nd May 2021. I am applying for the position of this business analyst. आप ऐसे करके जो भी आपको कहा है आर्टिकल असिस्टेंट वॉट एवर, तो आप वो लिख सकते हो ना. मिनट्स ऑफ द मीटिंग ये ऊपर वाले भी होगा. सीनियर मैनेजर ऑफिस प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ये भी एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग का क्वेश्चन है जो कि आपको शायद एमटीपी में रहा होगा. ये वाला अरेंजमेंट्स एंड रिसोर्सेज टू बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, ये वाला कि भाई जो कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम कराओ और जो कम आ रहे हैं उनको थ्राइस अ वीक कराइए. लुक एट दिस. पार्टिसिपेंट्स इन अटेंडेंस कर दिया, डेट डाल दी, मीटिंग स्टार्टेड कर दिया. मिस्टर एसटी आरआर देखो ऐसे ही नाम दे दिए. सीनियर मैनेजर अकाउंट्स इन्फॉर्म द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, प्रेजेंटेड डिटेल्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट स्टाफ इंक्लूडिंग द एड्रेसेस, रिलेटेड पॉइंट्स आप लिख दीजिए, है ना. प्रिपेयर अ रोस्टर residing within 5 kilometers, circulate the same, prepare a plan, regular reporting system, regular virtual meetings. तो ये आप सब समझ सकते हो, वर्क फ्रॉम होम है तो रेगुलर वर्चुअल मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड, है ना. उसके अलावा क्या रिक्वायर्ड हो सकता है भाई, एक लॉग रिक्वायर्ड हो सकता है, कब लोगों ने कितने देर तक अवेलेबल रहे. सेंड अ मेल आस्किंग देयर स्टाफ टू रिक्वेस्ट फॉर लैपटॉप्स, कि भाई सबके पास मशीन होना चाहिए ना टू कनेक्ट वर्चुअली, ठीक. इस तरीके के अगर आप 3-4 पॉइंट भी दे देते हो ना तो भी ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपको वर्बेटिम ये सारे के सारे होने ही चाहिए थे. अगर आप सिमिलर 3-4 पॉइंट भी आपने दिए ना तो भी ठीक है. यू नीड टू बी एबल टू टर्न योर माइंड, यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म कि मुद्दा आपको क्या दिया हुआ है लिखने के लिए, उसके ऊपर पेंसिल से उठाओ, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर नोट करो एंड देन फॉलो द सेम सीक्वेंस, फॉलो द सेम फॉर्मेट, उसमें फिट इन करिए इसको, ठीक है. टू प्रोक्योर एटलीस्ट 20 लैपटॉप्स, ये हो गया. उसके बाद टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स टू वेरियस क्लाइंट्स, कि भाई क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, तब तो काम करना शुरू किया जाएगा. एंड एटीआर टू बी सबमिटेड, सेम चीज, ठीक है. वोट ऑफ थैंक्स भी हो गया देखो यहाँ पे, एंड एटीआर टू बी सबमिटेड. ग्रुप टू मीट अगेन, अगली मीटिंग की डेट से, ठीक. ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं, जितना लगता है उतना है नहीं. अगर आप थोड़ा सा कॉशियसली करते हैं, फॉर्मेट का आपको आइडिया है, तो ये बहुत स्कोरिंग रहता है, इसमें काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं. Now this is अच्छा, ये मीटिंग ऑन फ्रेश रिक्रूटमेंट्स वाला ये यहाँ पर हो गया भाई. एज यू ऑल नो दैट वी नीड टू हायर फ्रेश रिक्रूट्स, ये वाला हम लोगों ने जो है यहाँ पर कर दिया. नेक्स्ट रिज्यूमे की बात करें, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे, अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप इन अ फर्म, राइट अ फंक्शनल रिज्यूमे टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशंस इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट अ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे बोला जाता है, फंक्शनल रिज्यूमे बोला जाता है, तो इससे आप क्या समझते हैं?
when you are asked to write chronological resume, when you are asked to write a functional resume. So I've told you all, chronological resume, functional resume is a skill based resume, ठीक है. Functional resume is a skill based resume. ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी स्किल्स, जो स्किल बेस्ड जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, इंजीनियर्स हैं, दीज आर स्किल्ड प्रोफेशनल्स. तो आप चाहे अकाउंट्स में काम करें, चाहे आप टैक्स में काम करें, यू स्किल्ड, राइट. दैट योर वर्क एक्सपीरियंस डजंट चेंज योर स्किल सेट, ठीक है. योर वर्क एक्सपीरियंस में एड टू योर स्किल सेट, इट डजंट चेंज योर स्किल सेट. A chartered accountant working in an accounts department, right, may still be eligible to work in a tax department, right? ठीक बात है ना. तो ये होता है स्किल. ऐसे लोग क्या लिखेंगे? स्किल रिज्यूमे. ना क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे वो होता है जहां पर वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ही आपका स्किल बेस बनाता है. जैसे कि एक ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, अकाउंटेंसी ग्रेजुएट है, ना दे हैव बीन वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक. By virtue of their work there in the accounts department, they develop experience and expertise, and in next company again they are applying for a senior role in the accounts department. उनको प्रेफरेंस क्यों दिया जाएगा? उनका जो पढ़ाई है वो भी अकाउंटेंसी में है, फिर उनका बैकग्राउंड जो है वो ही उनका स्किल बन गया. क्लोजली जब जो है ना सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स में, सेम इंडस्ट्री में, सिमिलर जॉब प्रोफाइल्स पे जब अप्लाई करता है कोई और उसका वर्क एक्सपीरियंस साथ में हो, तो वो चीज जो है आपका क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे. वर्क एक्सपीरियंस जब क्लोजली इंटीमेटली कनेक्टेड होता है आपका स्किल सेट के साथ, व्हेन वर्क एक्सपीरियंस हेल्प्स यू टू बिल्ड दैट स्किल बेस, क्लोजली कनेक्टेड हो, तो ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में काम होता है, ठीक है. क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे में ऊपर हम लिखते हैं वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, जबकि फंक्शनल रिज्यूमे में ऊपर आता है आपका स्किल सेट और क्वालिफिकेशंस, नीचे हम लिखते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है. फंक्शनल जो है उसको जनरली मिक्स कर दिया जाता है हाइब्रिड के साथ नीचे चला जाता है वर्क एक्सपीरियंस, है ना, और पूरा लिखा भी नहीं जाता. फंक्शनल के लिए पूरा लंबा लेंथी वर्क एक्सपीरियंस हम नहीं लिखते. वी मे राइट मेजर प्रोजेक्ट्स एंड लीव इट. हर एक वर्क एक्सपीरियंस का पूरा चार्टर, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिखते. क्रोनोलॉजिकल में जनरली ग्लिम्स दिया जाता है पूरे वर्क एक्सपीरियंस का, ठीक है. अब देखो, रिज्यूमे बनाना है ना, फॉलो दिस फॉर्मेट. रिज्यूमे बनाना है, फॉलो दिस फॉर्मेट. नेम आपका सेंटर में हो गया, ठीक है. राइट साइड में राइट योर ईमेल आईडी एंड इन केस यू हैव अ सोशल मीडिया प्रोफाइल, एनी प्रोफेशनल प्रोफाइल दैट यू हैव, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपने यहाँ लिख दिया ऊपर, ठीक है. दिस इज स्टैंडर्ड गुड टेम्पलेट टू बी यूज्ड, ठीक है. करियर ऑब्जेक्टिव समरी से दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं, आप जो है फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करें, राइट ऑब्जेक्टिव, करियर गोल, ठीक. फॉर अ प्रोफेशनल, अगर आपको रिज्यूमे बनाने के लिए आता है 10 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का, 15 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का, देयर एक्सपीरियंस डिवाइडेड इनटू 2, डिवाइडेड इनटू 3, जनरली डिवाइडेड इनटू 2 रहता है ना एग्जाम में. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, समरी लिख सकते हो. समरी शुड बी लाइक अ स्नैपशॉट, लाइक छोटा सा एक आपका ओवरऑल जो है ओवरव्यू एक होना चाहिए, है ना. एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैविंग experience in the areas of this and this tax accounts and audit, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है. स्पेशलाइजिंग इन ऑडिट, ऐसे आप लिख सकते हैं. स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसीज फॉर प्रोफेशनल्स, अगर आप फंक्शनल रिज्यूमे लिख रहे हैं तो इफ रिज्यूमे इज ऑफ अ स्टूडेंट और अ फ्रेशर, यू कैन स्किप दिस, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, ये फंक्शनल का है, ठीक है ना. वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आ गया नीचे. अगर ये आप लिख रहे हो क्रोनोलॉजिकल में वर्क एक्सपीरियंस चला जाएगा ऊपर, ठीक है, स्किल वाला पार्ट हट जाएगा. वर्क एक्सपीरियंस चला जाएगा ऊपर और स्किल वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक ना. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको जरूर लिखनी चाहिए, क्या क्या आपको आता है, मस्ट है. अचीवमेंट्स और एक्वलेंस लिखिए. इंटरेस्ट, वॉलंटियरिंग क्या क्या है, प्रोफेशनल इंटरेस्ट वो लिखिए. पर्सनल डिटेल्स में खाली ये 2-3 चीजें आप लिख सकते हो, बाकी तो आपने ऊपर दे दिया है ना. बाकी तो कॉन्टैक्ट आपने दे दिया, एड्रेस आपने दे दिया, सोशल प्रोफाइल आपने दे दी, तो फिर ये पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट, दैट्स इट. और ये डिक्लेरेशन आपको एक ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि भाई आईसीआई से आपको मॉड्यूल में बोला गया हर एक में डिक्लेरेशन आपको ऐड करना है. वैसे जब आप ईमेल करते हो तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू ईमेलिंग इट फ्रॉम योर आईडी ओनली, राइट. तो लेकिन अगर आप पेपर पे लिखते हैं तो भाई जस्ट टू एंश्योर आपको डिक्लेरेशन देकर सिग्नेचर करना होता है. यू जस्ट मे ऐड वन लाइन, I solely declare that all the details provided are true to the best of my knowledge. That's it. This is the format. This is the format that you need to follow. कहीं पर ये कवर लेटर के लिए सिंपल, मैंने आपको अभी बताया था, सेम लेटर, सेम फॉर्मल लेटर
Application for the position, yeah, greetings for the day. I'm writing this letter to express my interest. I'm writing this letter to express my interest with reference to your advertisement in TOI dated this and this. I'm keen to apply for the position of article assistant. I have qualified CA Intermediate Group 1 in Jan 21. Right now I'm looking for an opportunity at a prestigious firm like yours. Simple. Make it simple. I'm ready to present myself for a personal interaction as per your convenience. I assure you that I shall work with utmost diligence in your firm, to your firm. ठीक? My detailed resume is enclosed herewith for your perusal. Looking forward to a positive response. This is the good closing. फिर ये सब जो है आप देख सकते हो रिज्यूमेज यहाँ पर दिए हुए हैं आपके एमटीपीज में सैंपल्स. अब आप इसको जो है ना इन सारी चीजों को इनसे आप मैच कर सकते हैं, इसके साथ आप मैच कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो. राइटिंग स्किल्स में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. देयर आर सिंपल फॉर्मेट्स. ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस द फॉर्मेट्स. क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझो, अप्लाई करो. इस फॉर्मेट को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, इसमें ही आपको अपना जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसी के कंटेक्स्ट में आपको इसको यूज करना है ना. जो पार्ट्स आपको लग रहा है आप मैच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको करिए, बाकी को हटा दीजिए और आप बस हो जाएगी, बन जाएगी आपकी बात. ठीक है. सो नेवर बी वरीड अबाउट कैसे करेंगे. जस्ट पे अटेंशन टू द फॉर्मेट्स एंड हाउ बेस्ट कैन यू प्रेजेंट इन द एग्जाम्स. आंसर्स जब आप लिखते हैं ना, स्पेशली राइटिंग स्किल्स वाले फॉर्मेट्स पे, टेम्पलेट्स जो आप यूज करें उस पर खास ध्यान दीजिए. नीटली लिखिए. खिचड़ी कर देते हैं तो समझ में नहीं आता. क्वेश्चन नंबर्स वगैरह क्लियरली लिखे. कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कॉपी वगैरह निकलवाई, कई बार होता है भाई मार्क्स नहीं क्लियर आए तो वो फ्रस्ट्रेशन होती है स्टूडेंट्स की. जब देखिए मैंने सो आई हैव एडवाइज्ड देम दिस इम्पॉर्टेंट थिंग ओनली कि भाई आप जब भी लिखते हो ना, मेक श्योर यू राइट क्लियरली, यू प्रेजेंट इन एन अट्रैक्टिव मैनर. ऐसे नहीं आपने खिचड़ी कर दी है, कहीं क्वेश्चन नंबर कहीं कुछ नहीं दिख रहा, ना मार्जिन दिख रही है, ना स्पेसिंग, इंडेंटेशन, ये सब जरूरी है. जैसे यहाँ पर मैं आपको फॉर्मेट की बात कर रही हूँ, नोट मेकिंग वगैरह में इंडेंटेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, यू कैन स्कोर वेरी वेल. ये पूरा बीसीआर जो है एक्चुअली बोनस है ये, है ना. आपका स्किल सेट तो पूरा आगे के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एनहांस हो ही रहा है, साथ में आपको बोनस मार्क्स है. इन सब में पूरे सब चीज के फॉर्मेट्स हैं क्लियर. ठीक है. ग्रामर आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन इन स्कूल एंड यहाँ पर आई हैव बीन ऑफरिंग यू ऑलमोस्ट मतलब हम पूरा का पूरा रिविजन एंड वी हैव डन थिंग्स फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ओनली इफ यू आर डिलिजेंट एंड यू स्लाइटली यू डिवोट टाइम टू प्रैक्टिसिंग. दैट्स ऑल. आप थोड़ा सा टाइम प्रैक्टिस में डिवोट करो, उतना ही काफी होगा. So all of you take care and I'll see you on 29th now and we shall discuss the strategy to write here to attempt your BCR exams. ठीक है? 29th of May 11 AM. So you all take care, God bless you and you'll stay safe. Bye bye.